हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि प्रथम ध्वनि से हमारे अतिथि of the great saint, philosopher, patriot Swami Vivekananda, an inspirational icon for all across the ages, across the boundaries. His message has ever been relevant for us all, yet his message for the youth is be responsible. Be responsible for ourselves, for our families, for the society, for the nation. Taking this message across, today we are celebrating this day, marking it as the Young Advocates Day. I start this program with a quote from Kathopanishad, which is a dialogue between Nachiketa and the Lord of Death, Yama. It says, Uttishta Jagrit Prapya Varani Bodhan. Arise, awake, and learn in the company of the great ones. Taking it ahead, I welcome all our esteemed dignitaries, honorary guests, because in the learned company of these, we are surely going to learn. A very warm welcome to our guests on behalf of Adhivakta Parishad. I welcome Honorable Justice Shri Anand Pathak Sahab, Judge, High Court of Madhya Pradesh, seated at Gwalior. Our Chief Speaker, our Chief Guest, we are honored, sir. I welcome our Central Zone Zonal Coordinator, Kshetra Sanyojak Ji, Shri Vikram Ji Dubey. I welcome you, sir. I welcome Shri Valmik Sakargaya Ji, Mahamantri Malwa Prant Adhivakta Parishad. I welcome Shri Sunil Jain Ji, Senior Advocate and President Adhivakta Parishad High Court Unit. I welcome Chandan Singh Ji, President District Association of Adhivakta Parishad. I welcome Swati Di, representing Matri Shakti. She is the National Member Executive Member. I welcome Umesh Gajankush Ji. He is Judicial Member CAT. Please be seated on the dais. I am moving forward with the program. For honoring our guests, I am calling upon Shri Sunil Ji Jain and Chandan Singh Ji. स्वागत के लिए जस्टिस आनंद पाठक जी का. Let's invoke the divine blessings by lighting of the lamp and reminding ourselves that we have to move from the darkness to light, from ignorance to knowledge. The deep prajwalan. Dhyanamoolam gururmurti Poojamulam gururpadam Mantramulam gururvakyam Mokshamulam Guru Kripa. Om Shri Guruve Namaha. Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Sukha Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepa Jyotir Namostute. Om. कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अपने अतिथियों का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम श्री सुनील जैन जी एवं चंदन सिंह जी. हमारे आदरणीय अतिथि ऑनरेबल श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब का स्वागत करें. श्री मयंक वर्मा जी एंड श्री डैनी राठौर जी. श्री मयंक वर्मा जी एंड श्री डैनी राठौर जी, आप मंच पर आए. हमारे आदरणीय अतिथि श्री जस्टिस आनंद पाठक जी का स्वागत सम्मान करें. I call upon Prasanna ji and Dinesh ji Yadav, advocates.
विक्रम जी का स्वागत करने के लिए। प्रसन्ना जी एंड दिनेश जी यादव। विक्रम जी हमारे क्षेत्र संयोजक, उनका स्वागत है। एडवोकेट प्रद्युम्न केबे जी एंड एडवोकेट विजय नागपाल जी। हमारे महामंत्री वाल्मीकि सकरगाय जी का स्वागत सम्मान। एडवोकेट विभा भारुका जी, एडवोकेट कीर्ति व्यास जी। हमारे सीनियर एडवोकेट, आर गाइड मेंटोर सुनील जी जैन, हमारे प्रेसिडेंट अधिवक्ता परिषद हाई कोर्ट यूनिट, उनका स्वागत करें। एडवोकेट मृदुला सिंह जी एंड एडवोकेट अपूर्व जोशी जी। स्वाति दी, हमारी मातृशक्ति, ऑन द स्टेज, उनका स्वागत करें। उमेश गजांकुश जी, we are grateful Umesh Gajankush ji has joined us. Please come on the dais, please. Very warm welcome, sir. For honoring Umesh Gajankush ji, I call upon Advocate Nidhi. Moving ahead, I quote from the Yajurveda Sukta, Ano Bhadraha Kritvo Yantu Vishwataha. Means, let noble thoughts come to us, reach us from all directions. This Sukta reminds us to keep the windows of our minds open for positive thoughts to come. First of all, I request our Mahamantri Waल्मीकि सकरगाय ji to present books to our honorable guest, the chief guest, the speaker. For the presentation of mementos to our honorable guests, I call upon Prabhal Bhargav ji, advocate, Advocate Dilip Singh ji, Advocate Manuraj Singh ji, for presenting mementos to our honorable guests. Advocate Prabhal Bhargav ji, Dilip Singh ji, Manuraj Singh ji, presenting mementos to our honorable guests. We welcome you, sir. I welcome, a very warm welcome to Justice, Honorable Shri Justice I.S. Srivastava ji, currently कार्यकारी अध्यक्ष of अधिवक्ता परिषद मलबागाम. A very warm welcome to you, sir. To honor our Honorable Shri Justice I. Srivastava ji, I call upon Advocates Anand Raj Pandey ji and Advocate Shalini Dubey ji to come up on the dais. Advocate Shalini Dubey ji. We welcome you, sir. We're grateful. Thank you. Moving ahead with the program, I call upon our senior advocate Sunil Ji Jain to
give us an intro about the chief guest, our chief speaker. To you, sir. Honorable Justice Shri Anand Pathak, Judge High Court of Madhya Pradesh, Shri Umesh G. Gajankush, Member Judge Central Administrative Tribunal, Retired Justice Shri I. Srivastav, कार्यकारी President, Malwa Prant, Adhivakta Parishad, Shri Vikram Ji Dubey, Zonal Secretary, ABAP, Shri Valmik Sakargai, Mahamantri, Adhivakta Parishad, Malwa Prant, other dignitaries on and of the dais, Behno and Bhaiyo. I, the President of High Court Unit, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad, welcome all of you in today's August gathering. I have been given the task to introduce Honorable Justice Pathak. I am feeling proud to introduce him, whom I spent years together. मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ, जो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, जो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की। कुछ ऐसा ही करके Honestly speaking, if I introduce him in detail, it will take hours together. Therefore, give his introduction in brief. Shri Pathak Sahab was awarded as best student in Central School, remained General Secretary in college on the basis of his merit, received National Merit Scholarship, as remained topper in graduation, life member of Indian Institute of Public Administration, New Delhi, holder of private pilot license in school and college time, remained debater. He remained sportsman, played cricket at national level and hockey at state level. He also used to play volleyball. He was also associated with Akashvani Indore. He was orator at Abhyas Mandal. So far as his professional experience is concerned, Honorable Justice Pathak, during his professional career, when he was an advocate, worked in all branches of law. Worked as government advocate in Advocate General's office from 2005 to 2009. Appeared regularly as counsel for Western Railway, Indian Railway, Catering and Tourism Corporation, Employees Provident Fund, MP Power Transmission Company Limited, Hindustan Lever, ICICI, HDFC, Vikram University, etc. Participated and sat as member in continuous and permanent Lok Adalat as well as in National Lok Adalat for 7-8 years continuously. Appeared as counsel in some important public interest litigations where the cause of public at large has been canvassed. Secretary, he also elected as Secretary High Court Bar Association, Indore for session 2010-11. Golden Jubilee year of the High Court Bar Association Indore. He was writer of several articles on different subjects and frequent lectures were delivered by him in different law colleges at Indore and at different educational, social, cultural organizations. He was life member, Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Appointed as Judge of the High Court of Madhya Pradesh on April 7, 2016, and he was permanent judge on March 17, 2018. Justice Anand Pathak is a different kind of judge. He doesn't believe in only deciding the cases, but decides the cases with innovative approach. He has a strong desire to serve the society in a different way, which reflects from his orders. Few of the important orders and judgments are: in the matter of Bharat Jatov versus the state of MP. In this matter, Honorable Justice has directed the government to set up a National Forensic Science University in the state of Madhya Pradesh for better investigation of crime and complaints of compliance of his direction of the government has decided to open National Forensic Science University in Madhya Pradesh
8, Bhopal. In the matter of Biren Singh Sikarwar versus State of Madhya Pradesh, it was decided that a direction was given to the government for creation of a Sandesh application group for investigation of criminal cases with the crime number of the case. It has been also directed that on registration of crime number, a group should be created in which complainant station house officer, public prosecutor, witness all to Munshi shall be the members of the group, so that the progress of the prosecution of and Samadhan Samandhit witnesses can be shared on the group to avoid delay in the trial. In the matter of Sunita Gandhar versus State of MP, it has been described that the court can grant the order for community services while granting bail to the accused by enlarging the scope of the section 437(3) of the CRPC. In the matter of Balbir Singh Bundela versus State of Madhya Pradesh, in this case the scope of anticipatory bail has been described, and it has been held that the anticipatory bail can be granted even if the accused is declared absconded under section 82 of the CRPC. Victim X versus Santosh Sharma. In this case, theory of broken window has been elaborated to demonstrate that if a criminal is stopped from committing a small crime, he can be prevented from becoming a big criminal. In the matter of Geeta Palirpal versus Sita Ram and others, it was observed that every file has a life, and a quasi-judicial authority must deal with the cases sincerely and in accordance with the law. The concept that every file has a life is very innovative idea. This shows that how Honorable Justice Pathak is involved with the cases to see that the justice should be delivered to every person. Formation of NISAL mobile app to check the real-time location and attendance of accused person who has been directed to plant a tree or to do community services while granting anticipatory bail. Now, Honorable Justice Pathak is before this gathering to deliver his lecture on the Drishyam Vidhi, which is an entirely different concept to teach the law and how to investigate the matter in an innovative way by involving the various movies, clippings of the movies, so that the students of the law, the investigating officer can learn from this innovative idea. So we are going to get benefited by the very innovative ideas of Honorable Justice Pathak today. We all welcome Honorable Justice Pathak in today's function. Thank you very much. Thank you very much, sir. I call upon Honorable Shri Justice I.S. Srivastava Sahab for briefing us about his experience of working with Adhivakta Parishad and sharing his insights with us. आदरणीय जस्टिस पाठक साहब, वाल्मीकि जी, मुझ गजानपुर जी, जैन साहब और मंच पर विराजमान अन्य विभूतियाँ, भाइयों और बहनों, अधिवक्ता परिषद से मेरा जुड़ाव 3-4 वर्ष से है लगातार, और निरंतर इसके माध्यम से हम लोग गतिशील हैं कि अधिक से अधिक अधिवक्तागण को इस फील्ड में विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, एक स्टूडेंट लॉ पास करने के बाद जब एडवोकेसी करने के लिए आता है तो किसी न किसी ऑफिस ज्वाइन करता है, और उस ऑफिस में उसे जो कुछ सीखने को मिलता है उसका ज्ञान और अनुभव वहीं तक सीमित रहेगा। लॉ की फील्ड बहुत वास्ट है, जिंदगी भर लॉ पढ़ते रहो तो अपन कभी मास्टर नहीं हो सकते सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी
उसके ज्ञान का वर्धन हो, निरंतर हर फील्ड में उसे कुछ न कुछ ज्ञान हो, इसकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैंने अपने जुडिशल सर्विस के एक्सपीरियंस में कई जगह देखा कि लोगों को 15-15, 20-20 साल की सर्विस प्रैक्टिस होने के बाद भी बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, सारे एक्ट्स की जानकारी नहीं होती। कभी कहीं ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अनजान से खड़े रह जाते हैं, सर हमने तो देखे ही नहीं आज तक। हम लोग भी बीइंग जज कई बार ऐसा महसूस करते थे, भाई ठीक कोई अच्छे एडवोकेट एफआईआर हुए आपके यहाँ बहुत ज्ञानवान, और उन्होंने अच्छा सा लेक्चर दे दिया किसी केस की लॉ की स्थिति के बारे में, तो हमें भी लगता था कि हमने अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य यही रहा है कि अधिक से अधिक हम लोग सीखें, अधिक से अधिक ज्ञानवान बने और अधिक से अधिक इसके माध्यम से समाज की सेवा कर सकें। आज का जो लेक्चर है वो अपने आप में अनूठा है, आपको उससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है सबके लिए। मेरी बार बार इन अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं से अनुरोध रहा है कि हर जिले में 10-12 एडवोकेट सिविल के और 10-12 क्रिमिनल के अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा अनुभव होता है इस फील्ड का। उनके लेक्चर हर महीने नहीं तो 2 महीने में एक बार जरूर कराए जाएं, किसी एक्ट को लेके या किसी खास सेक्शन को लेके, जिससे कि सबको एक साथ एक ही मंच के द्वारा सब जानकारियाँ मिल सकें और उन लोगों के ज्ञान का वर्धन हो, जिससे हम लोग इस वकालत के माध्यम से आम जनता की सेवा कर सकें। दुखी पीड़ित क्लाइंट अपने वकील साहब को ही सब कुछ मान के उनके हाथ में अपना केस सौंप देता है, तो अधिवक्ता वर्ग की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके केस का निराकरण पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ और पूरा न्याय उसके साथ हो सके। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है पक्षकार असंतुष्ट है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ और न्यायदान की प्रक्रिया भी इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही है, मेरा फिर बार बार अनुरोध है सबसे, आप लोग अधिवक्ता परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बताएं तो फलाने वकील साहब फला सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनका लेक्चर हम सुनना चाहते हैं। और अधिवक्ता परिषद के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो भी ढूंढें कि इंदौर में कितने सारे अच्छे एडवोकेट्स हैं जिनसे हम लोगों के ऊपर ज्ञान की वर्षा हो सकती है और उसके द्वारा सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं। आपका प्रोग्राम सफल हो, आप ज्ञानवान बने, ज्ञान की फील्ड में आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Ji Dubey to tell us about the ideology and work of Adhivakta Parishad. सब इतने ध्यान से, इतने गंभीरता से जिस सब्जेक्ट को सुनने के लिए आए हैं, उस सब्जेक्ट का जो मूल कंसेप्ट है वो शोले पिक्चर से। तो शोले पिक्चर में इतनी गंभीरता और वो नहीं है। ये तो जो गब्बर है वो पूछने लग जाएगा कितने आदमी हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे। सम्मानीय मंच, आज हम सबका मेरा सौभाग्य है और हम इंदौर हाईकोर्ट बार और जिला कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता उपस्थित हैं कि हमारे बीच में से जो डायस के ऊपर जाके विराजमान हुए हैं, शोभायमान हो रहे हैं, श्री आनंद पाठक जी और उमेश गजांकुश जी, उनके साथ में हम एक कार्यक्रम कर पा रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम हम कई करते रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी उपलब्धि इस बात की है कि आनंद भाई साहब ने, आनंद सर ने, मैं तो सर हम माफ़ी चाहेंगे, आपका नाम आता है तो भाई साहब ही निकलता है, भैया ही निकलता है। सर ने जो इनिशिएटिव लिया है कि एक लॉ को समझाने का, बातों को रखने का, विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दृश्यम विधि आपने जो एक इजाद की है या बताने की कोशिश की है, पूरे मध्य प्रदेश में एक अगर लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर छोड़ी जाए तो अधिवक्ता परिषद का सौभाग्य मिला है, मालवा प्रांत को मिला है, इंदौर को मिला है कि हम अधिवक्ताओं के बीच में, युवा अधिवक्ताओं के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में दृश्यम विधि को, नए कंसेप्ट को लाने के लिए हम प्रयासरत रहे, हम उसके अंदर सफल हुए हैं। आपसे जबलपुर जब मैं प्रवास ले गया था तब आपसे मुलाकात की, तब आपने इस बारे में बताया था, तब से दिमाग में था कि कार्यक्रम आपका दर्शन विधि का इंदौर में हमें करना है। तो आपने हमें समय दिया, हम सब उसके लिए सौभाग्यशाली हैं। मंच के ऊपर विराजमान हाईकोर्ट यूनिट के अधिवक्ता श्री सीनियर एडवोकेट सुनील जैन साहब, जिनका बड़ा
मेरे को नहीं मिलता है, मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। हमारे प्रांत के महामंत्री, मालवा प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष श्री IS श्रीवास्तव साहब, जिनके गाइडेंस में हम अधिवक्ता परिषद को और आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं कि और कितनी बारीकियों से हम अधिवक्ताओं को निपुण कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। स्वाति दीदी हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, सभी सम्मानीय मंचों के साथ में इस सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण, मातृशक्ति और जितने भी यहाँ लॉ स्टूडेंट्स आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान, धन्यवाद, आभार। अधिवक्ता परिषद, जैसा भी IS श्रीवास्तव साहब ने भी कहा कि एक विचार को लेकर काम करते, और हमारा जो विचार है वो हमारा न्याय मम धर्म, न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहना, ये हमारा धर्म है। जिस व्यक्ति को न्याय से वो वंचित हो रहा है, वो टेक्निकलिटीज के कारण हो रहा हो, वो आर्थिक समस्याओं के कारण हो रहा हो, दूरी के कारण हो रहा हो, अगर समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति किसी भी कारण से अगर वो न्याय से वंचित हो रहा है, अपने अधिकारों का उसका हनन हो रहा है, तो उसकी रक्षा करना, उससे एक लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ये अधिवक्ता परिषद का मूल कर्तव्य है। अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता अपनी इस विचार के साथ में डोर स्टेप पे ऐसे व्यक्तियों को न्याय मिल सके समाज के अंतिम छोर तक, तो कुछ ना कुछ हम इसे प्रयोग करते हैं कि कुछ समाज के लिए हम न्याय कर सके, समाज के लोगों से जुड़ सके। पाठक साहब, मैं आपको इंदौर की बताना चाहूंगा कि पिछले साल संविधान दिवस पे विचार हुआ कि इंदौर की जितनी भी बस्ती क्षेत्र है उसके अंदर हम न्याय शिविर लगाएंगे। न्याय शिविर मतलब कि अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता बस्ती में जाएंगे, 3 घंटे फ्री में वहाँ सेवा देंगे। जितने भी वहाँ पे बस्ती के लोग, उनको बताया जाएगा कि वकील हाईकोर्ट के जिला कोर्ट क्या है, आपकी कुछ समस्या हो तो आप वहाँ पे, अगर प्रशासनिक समस्या तो आए, हम जो आपको एडवाइस दे सकते हैं वो देंगे, और जो आपके हम कोर्ट में मदद कर सकते हैं वो करेंगे। तो पिछले साल इंदौर के अंदर, इंदौर का पूरा रेडियस शायद 130 किलोमीटर के दायरे में ऐसे 15 न्याय शिविर लगे थे, और इस बार 26 नवंबर को संविधान दिवस पे ऐसे 24 न्याय शिविर पूरे इंदौर शहर के अंदर लगे थे। कई तरह की समस्याएं हमें उस तरह की मिलती है, कुछ आदिवासी क्षेत्र के अंदर लगा है, उनके आगे समस्या मिलती है, तो कोशिश करते हैं कि उसको कैसे एक अच्छे तरह से समाज तक पहुंचाए। उसमें इंदौर के अंदर जितने लॉ कॉलेज, तकरीबन 12 लॉ कॉलेज के 120 बच्चे के ऊपर उसके हमारे साथ जुड़े। हर बस्ती के अंदर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स और हमारे अधिवक्ता परिषद के वकील भाई, उनके द्वारा वहाँ पे अपनी सेवाएं दी गई, समस्या दूर की गई। तो उस तरह से हम कुछ ना कुछ करते हैं। एक इनिशिएटिव अधिवक्ता परिषद ने लिया है कि हम सभी अधिवक्ता हैं, जेलों के अंदर जितने भी मुलजिम हैं उनकी सबकी अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। न्यायिक कर्मचारियों के, न्यायिक विभाग के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, जिला जज के द्वारा जेल के अंदर निरीक्षण किया जाता है। वो निरीक्षण एक उनकी एक प्रक्रिया होती है। बाकी जो अंदर मुलजिम है उसकी समस्या किस प्रकार की, और उसकी समस्या उसके परिवार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। तो हमने अधिवक्ता परिषद ने पूरे मध्य प्रदेश में जेलों के अंदर न्याय शिविर लगाना शुरू किया। तब जेलों के अंदर न्याय शिविर लगाना शुरू कर, उसका कंसेप्ट ये था कि कई ऐसे मुलजिम होते हैं जिनकी सजा पूरी हो जाती है, बाकी अर्थदंड की राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा समय काटना पड़ता है। तब उसके लिए अधिवक्ता परिषद ने विचार किया था कि अगर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और अगर ऐसा कुछ उसका फाइन अमाउंट है जो हम आपसी कलेक्शन से भर सके तो हम वो कर सकते हैं। तभी इंदौर के अंदर भी लगा था, उसके अंदर भी सफलता मिली। सतना के अंदर लगा था, जबलपुर में लगा था, कटनी के अंदर लगा था, इंदौर जिले के सभी इसमें लगा। तो अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता का मूल भाव होता है किसी न किसी प्रकार से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय से, उसका आर्थिक अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको भावनात्मक सपोर्ट भी दें, विधिक सपोर्ट दें, और उसके परिवार की भी चिंता करें कि उसके परिवार के अंदर से इन परिस्थितियों के कारण कोई नया अपराधी पनपे ना, उस पर भी हमारा विचार रहता है। अभी आप सबके सामने वाल्मीकि जी ने एक आनंद साहब को न्याय प्रवाह और कुछ बुक्स जो गिफ्ट की है, उस न्याय प्रवाह पत्रिका जो 13वीं होती है देश भर में निकलती है, उसमें सर का भी एक आर्टिकल छपा है। वो आर्टिकल देश भर के अंदर ऐसी पत्रिका सर्कुलेट होती है कि अच्छे अच्छे विषय, टॉपिक जो होते हैं वो अधिवक्ताओं को मालूम पड़े। हम कोशिश करते हैं कि उस तरह की सारी चीजें लॉ कॉलेज के अंदर भी जाए और संपर्क हो। तो अधिवक्ता परिषद का दायरा कोर्ट, समाज के साथ में अब हमने इस विचार किया नए आयाम के अंतर्गत कि जितने भी देश के अंदर कमीशन होते हैं, वो मानव अधिकार आयोग हो, बाल संरक्षण आयोग हो, उनके अंदर भी अपनी एक समस्या होती है जिनको लोग अधिकार से परेशान होते हैं। तो ऐसे आयोगों के साथ में भी अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता जुड़ के काम करें। समाज के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करके उस तरह का किया जा रहा है। तो वैसे अधिवक्ता परिषद की बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो समाज के लिए
न्यायदान के लिए सहयोगी हों उसके लिए लगे रहते हैं। अभी हमारा राष्ट्र परिषद की बैठक गुवाहाटी IIT के अंदर थी, वहाँ हमने रिजोल्यूशन पारित किए कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्लेम फाइल करने की जो समय अवधि 6 माह है, उसके क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं कि क्लेमेंट को कितना नुकसान हो रहा है कि उस लिमिटेशन में अगर वो क्लेम फाइल नहीं कर पा रहा, उसको लेके क्या है, स्पीडी ट्रायल किस प्रकार से हो, कोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको लेके भी अधिवक्ता परिषद विचार करके समय समय अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को और जुडिशरी को भेजते हैं। ये ऐसी सभी प्रकार की चीजें हम सोचते हैं। और आज हम जिस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं वो अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। पूरे देश में, शहर में, हर स्कूल कॉलेज के अंदर कहीं कुछ ना कुछ युवाओं को जागृत करने के लिए कार्यक्रम हुए हैं। वैसा ही कार्यक्रम अधिवक्ता परिषद भी अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करती है। तो अभी जेलावत साहब ने नीचे बैठे तब उन्होंने पूछा कि यंग एडवोकेट डे ये पहली बार देखने को मिला है, तो ये शब्द है ये कहाँ से आया? मैंने कहा ऐसा भी अधिवक्ता परिषद के द्वारा इनिशिएटिव वर्ड है कि हमारा को अधिवक्ता परिषद को जो यूथ डे मनाना है वो यंग एडवोकेट के बीच में मनाया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम है उसके अंदर जितने भी लोग लगे हुए वो सब यंग एडवोकेट हैं, उनके द्वारा तैयारी करना, यहाँ की व्यवस्था करना, वो सब की गई है। तो लोगों को किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें, विचारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा अधिवक्ता परिषद का प्रयास है। और आज इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा युवा सुने और उसका लाभ लें, इसीलिए लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट जितने हैं उनको विशेष ध्यान करके यहाँ पे आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा आए उसके लिए समिति के द्वारा, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के द्वारा एक गूगल फॉर्म भी बनाया गया कि उसमें जितने भी यंग एडवोकेट है उनका डाटा भी उसमें तैयार हो कि जो आगे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए रहे। तो ऐसा अधिवक्ता परिषद के माध्यम से हम सब काम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी सहयोगी हैं। आप सबको अधिवक्ता परिषद की कार्य गतिविधि पूर्व से ज्ञात है। नए नए आयामों के साथ में जुड़ के समाज की सेवा करें, हमारे प्रोफेशन के साथ में। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। And guide us about the topic. And I request all our dignitaries on the dais to take the seats on the front row so that we can set the stage ready for the presentation much awaited. Please, sir. आदरणीय जस्टिस IS श्रीवास्तव साहब, रिटायर्ड जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आदरणीय उमेश गजानकुश जी, मेंबर जज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रिय विक्रम दुबे, जोनल सेक्रेटरी ABAP अधिवक्ता परिषद, प्रिय वाल्मीकि शक्करगाय, महामंत्री अधिवक्ता परिषद, मेरे बड़े भ्राता सुनील जैन साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट यूनिट अधिवक्ता परिषद, मातृशक्ति नारी शक्ति मैडम स्वाति, विनय जिलावत साहब, सीनियर एडवोकेट, जब ये अध्यक्ष रहे तब मैं हाई कोर्ट बार में मुझे सेक्रेटरी रहने का सौभाग्य मिला। विवेक शरण साहब, फॉर्मर डिप्टी सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनिकेत नाइक, डिप्टी एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मैडम स्मृति राजदान, नारी शक्ति, अन्य अधिवक्तागण जो यहाँ दिख रहे हैं अधिकांश, विक्रम ने सही बोला कि वो मैं उन सब के लिए छोटा या बड़ा भाई हूँ। यहाँ तो घर में ही हूँ मैं। तो अन्य देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं अधिवक्ता परिषद का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इस बहाने आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। आज उपलक्ष्य भी इन्होंने बताया कि विवेकानंद जयंती 12 जनवरी थी, जिसका एक तरह से यंग एडवोकेट्स डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
विवेकानंद सभी जानते हैं कि मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे उन्होंने हमेशा बहुत जोर दिया और स्पिरिचुअल फिटनेस पे। आज उसी से संबंधित कुछ ये विषय है। आपको हो सकता लगे कि ये फिल्म है। फिल्म मुझे हमेशा लगता है कि 20वीं शताब्दी का सबसे सशक्त संचार का माध्यम रहा है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का बायस है, जिसके कारण लाइफ चेंज हुई है, कहने की, सुनने की, समझने की शक्ति बढ़ी है आदमी की। विवेकानंद हमेशा गीता और फुटबॉल का उदाहरण देते थे कि फिजिकल फिटनेस फुटबॉल के प्लेयर की तरह होना चाहिए, इसलिए फुटबॉल खेलना चाहिए। और धर्म को समझने के लिए गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। धर्म का आशय सभी लोग जानते हैं यहाँ कि धारयति इति धर्मः, अर्थात जिसको हम धारण करते हैं वो हमारा धर्म होता है। हम लॉयर्स हैं, हम जजेस हैं, फ्रेटर्निटी कॉमन पूल है लॉ से संबंधित। तो हमारा धर्म क्या है ये हमको समझना है और हम उसको कैसे उसमें प्रवीणता हासिल करें, कैसे निपुणता हासिल करें, कैसे विशेषज्ञता हासिल करें, ये हमारा धर्म होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि लॉयर्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स, ये चार, लॉयर्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स, दे आर हीलर्स ऑफ सोसाइटी। दे हील। पुलिस वाले के पास अगर कोई आदमी कंप्लेंट लेके जाता है, कोई बच्ची ने कहा कि छेड़खानी की शिकायत है, पुलिस वाले ने अगर तुरंत उस पर एक्शन लिया तो वो जो घाव था उस पर मलहम लग जाता है। उसने लड़के को बुलाया, डांटा डपटा या केस बनाया, लड़का आइंदा छेड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जिसको मैंने ब्रोकन विंडो थ्योरी में, एक जजमेंट है मेरा मिस एक्स वर्सेस संतोष शर्मा, उसमें मैंने उस प्रिंसिपल को डेलिनेट किया है। डॉक्टर्स सब जानते हैं कि अगर हमको समस्या आती है, कोई दर्द है, कोई चोट लगी है, कोई ऑपरेशन होना है, घाव होना है, सर्जरी हुई और दर्द ठीक होता है। लॉयर्स के पास अगर कोई आदमी आता है केस लेके, अगर अच्छी तरह केस तैयार हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो वो हील करता है। और वही भाव जज का होना चाहिए कि केस आया, दो पक्षों ने अपनी बात रखी और उसके अंदर जो भाव है जस्टिस का, वो अगर प्रिडोमिनेंट है तो वो हील करेगा उसको। जज का ये कर्तव्य है। उसको मैं इस तरह से समझता हूं कि एक फ्रेंच राइटर थे वोवन ऑर्ग्यूज, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इमोशंस हैव टॉट मैनकाइंड टू रीजन। इमोशंस हैव टॉट मैनकाइंड टू रीजन, अर्थात आदमी ने भावनाओं के माध्यम से तर्क करना सीखा है। बड़ी अलग टाइप की बात है। हम लॉ में बड़ा लॉजिक को, रीजनिंग को, इंटेलेक्ट को, इस चीज को बड़ी प्रधानता देते हैं, लेकिन वो राइटर कहता है कि इमोशंस हैव टॉट मैनकाइंड टू रीजन। अगर मैं हमेशा उसको अपने एडजुडिकेशन के सेंस में उसको हमेशा ये समझता हूं कि इन एडजुडिकेशन सेंसिटिविटी हैज टॉट जजेस टू एडजुडिकेट। और ये सेंसिटिविटी लॉयर्स के लिए भी है, लेकिन मैं अभी चूंकि जज के तौर पे बोल रहा हूं इसलिए। और ये सेंसिटिविटी कैसे है, कैसे आएगी, या क्या चीज है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, कई भाषाएं, परिभाषाएं हो सकती हैं। मेरी परिभाषा बड़ी सिंपल है कि एवरी फाइल, FILE, ये फाइल की स्पेलिंग है, एवरी फाइल विद सेम स्पेलिंग कंटेन्स ए लाइफ, LIFE। अगर फाइल के अल्फाबेट्स को, अगर F को आप बीच में ले जाएं और L को कोने पे ले आए तो हर फाइल एक लाइफ हो जाती है। तो अगर हमारे लिए, लॉयर के लिए, अगर वो फाइल
एक क्लाइंट है तो फिर जस्टिस शायद ना हो। एक जज के लिए वो फाइल एक डिस्पोजल है तो शायद जस्टिस ना हो सकता है हो फिर भी, लेकिन शायद ना हो। लेकिन अगर वो फाइल को हमने अगर लाइफ समझा, बिकॉज फॉर ए जज इट इज फाइल बट फॉर लिटिगेंट इट इज लाइफ, तो ये सेंसिटिविटी जो है ये अगर हम में है तो देन वी आर हीलर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, दे आर गुड प्रोफेशनल्स। शायद उनमें उतनी हीलिंग वाली क्वोशंट या हीलिंग वाला एट्रीब्यूट कम है। लॉयर्स में है, जजेस में है, डॉक्टर्स में है और पुलिस में। पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़ लो, लेकिन मोटे तौर पे पुलिस। ये अगर हमने, हमारा धर्म ये है कि जस्टिस करना, हमारा धर्म है जस्टिस करने में मदद करना, तो हम उसको कैसे अटेन करें, कैसे हम पाएं उसको। मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि ये फिल्म का क्यों विचार आया मेरे मन में कि जब जज के तौर पे मैं लॉयर्स को सुनता था तो जो मुझे कठिनाइयां आती थी सच तक पहुंचने में, उसने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उन लॉयर्स को जिनके पास वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मदद करने की कोशिश करूं। उसमें शायद ये एक प्रोजेक्ट निकला। 3 तरीके हैं नॉलेज एक्विजिशन के, ज्ञान प्राप्त करने के मोटे तौर पे 3 तरीके हैं। पहला है रीडिंग, लिसनिंग कह लो उसको। ऑडियो टेप अगर आप सुन रहे हैं तो वो लिसनिंग भी रीडिंग में आता है। रीडिंग टैबलेट, रीडिंग मोबाइल, रीडिंग कंप्यूटर, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, whatever type of printed things or audible things. रीडिंग, पढ़ते हो ज्ञान प्राप्त होता है। किताबें, आत्मकथा, जनरल बुक्स, लॉ बुक्स, जनरल रीडिंग, अखबार। दूसरा ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल करिए आपको ज्ञान मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर देश को समझना है तो पहले पूरे भारत की रेलवे के क्लास 3 के डब्बे में बैठ के यात्रा करो। उन्होंने कई नेताओं को यह समझाइश दी ताकि आपको भारत समझ में आए। ट्रैवलिंग। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने पूरा भारत घूमा, उनको भारत की विविधता दिखी। 4 जगह उन्होंने पीठ स्थापित करे, अलग अलग ज्योतिर्लिंग करे। ट्रैवलिंग। मार्को पोलो आया, फायान आया, हैंसोंग आया, ये सब ट्रैवल करके आए। इन्होंने अपनी आत्मकथा या वृत्तांत लिखे। राहुल सांस्कृतायन एक बहुत बड़े यायावर लेखक रहे। उन सब ने ट्रैवल कर करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। लॉयर हैं, कई बार यहाँ से अगर आप इंदौर से खरगोन, देवास, बड़वा, नीमच, मंदसौर जाएंगे, हर बार आपको एक नया अनुभव मिलेगा, नए तरीके के लोग मिलेंगे। और तीसरा है इंटरैक्टिंग, मिलना, संवाद करना। रीडिंग, ट्रैवलिंग और इंटरैक्टिंग। जब आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से तो आपको अलग अलग लोगों के विचार मालूम पड़ते हैं, दृष्टिकोण मालूम पड़ते हैं, परसेप्शन मालूम पड़ते हैं। और ये ट्रैवलिंग और इंटरैक्टिंग कई बार जुड़ा हुआ रहता है। मैं अभी कुछ दिन पहले केरल गया तो नई जगह देखी और वहाँ बहुत से लोगों से मिला तो उनका दृष्टिकोण समझ में आया। ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है। तो रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड इंटरैक्टिंग, ये तो हमने नॉलेज लिया। तो लॉयर का नॉलेज का तो सोर्स मालूम पड़ गया कि अगर लॉयर अच्छा बनना है तो हमको रीडिंग करना है। कोर्ट में अगर हम बहस सुन रहे हैं तो वो भी रीडिंग का पार्ट है, क्योंकि कोई दूसरा रीड करके बता रहा है, जज रीड करके बोल रहा है, जजमेंट दे रहा है, हम सुन रहे हैं तो हमको वो नॉलेज हो रहा है। तो रीडिंग, ट्रैवलिंग, इंटरैक्टिंग। कहीं आपको लोकल जाना है, हमेशा जाइए, लोगों से मिलिए। आज भी मैं भले ही जज हूँ लेकिन मुझे एक पायलट व्हीकल मिलता है, जाता हूँ तो मैं हर बार उस आदमी से पूछता हूँ क्या नाम है, कहाँ के हो,
किसी बजाय मैं सर्किट हाउस में रुकने के कोशिश करता हूँ कि रोड साइड पे किसी होटल में चाय पीऊँ, ढाबे पे, ताकि वहाँ के लोगों का मालूम पड़े। जब हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं तब हम एडजुडिकेशन बेहतर कर सकते हैं, तब हम जानते हैं कि बॉटम लाइन ऑफ जस्टिस क्या है। कई बार हम शीशे के घरों में हैं, हमको एसी रूम में बैठे हैं, हमको 45 डिग्री की गर्मी समझ में नहीं आ रही है, हमको 7 डिग्री या 6 डिग्री का जो ठंड का टेम्परेचर है वो समझ नहीं आ रहा है। वो समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंटरेक्ट करें, हम बाहर जाएं, लोगों से मिलें। तो सोसाइटी में कितने कम सैलरी पे कितने विपरीत परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं ये हमको मालूम पड़ता है। लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स, तो ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप when you learn life then you will learn law। तो इस तरह से जानने के लिए आपको ये चीजें करना जरूरी है। फिर ये एक्वायर करने के बाद आप किस तरह से इस प्रोफेशन में अपनी फिटनेस बनाए रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। विवेकानंद का जिक्र हुआ। विवेकानंद फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस को बहुत ध्यान देते थे। विद द टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन जजेस के लिए। जब मैं लॉयर्स बोलूं तो मुझे लगता है कि वो इट इंक्लूड जजेस ऑल्सो। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको कई बार इग्नोर करते हैं। फिजिकल फिटनेस वो चीज़ है जो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन को बढ़ाती है। जब मैं मेंटल फिटनेस पे आऊँगा तो बताऊँगा। फिजिकल जितनी हमारी फिटनेस है वो हमको एक बेस्ट मूड में रखती है, हमको एक बेस्ट मेंटल स्टेट में रखती है। इसलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुशील नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो पुत्र तक बाद में पहुंचे, पहले अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें। तो पहला सुख जो है हमारा, अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो हमारी मेंटल फिटनेस अफेक्ट होती है, स्पैन ऑफ अटेंशन अफेक्ट होता है, जो लॉयर्स के लिए बहुत जरूरी है। जिसके लिए मैंने ये ऑडियो विजुअल मोड करा, क्योंकि दूसरा कारण ये था कि मेंटल फिटनेस लोगों की नहीं थी, वो लोग बड़े स्कैटर्ड आर्गुमेंट्स करते थे। हो सकता है जब मैं लॉयर रहा हूं तो मैंने भी ऐसा बहुत बार करा होगा, लेकिन जब आप उस पोजीशन में आते हो तो आपने उस चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश की, तो असेस करा कि एडजुडिकेशन में आपको क्यों प्रॉब्लम आती है, कि वो आदमी जो कहना चाह रहा है वो आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे हो, और वो ये कह रहा है कि मैं तो पूरा पढ़ के आया था, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे। तो जो डिफरेंस आता है वो शुरू होता है फिजिकल फिटनेस से। हम अगर फिजिकली फिट हैं, हम आधा घंटा 1 घंटा रोज अपने आप को देते हैं, हम अपनी बॉडी टॉक, हम अपने आप को सुनते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि हम उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में हैं जहां हम घंटे 2 घंटे 4 घंटे ऑफिस में बैठ सकते हैं, और घंटे आधे घंटे हम एट ए स्टेज बोर्ड पे खड़े होकर आर्ग्यू कर सकते हैं, और 3 या 4 घंटे कोर्ट रूम में बैठ के अपने वेट कर सकते हैं अपने टर्न का नंबर आने का। ये फिजिकल फिटनेस से शुरू होती है हमारी सारी फिटनेस, फिर आती है मेंटल फिटनेस पे। मेंटल फिटनेस में मुझे हमेशा लगता रहा है कि जो एक्सप्रेशन है हमारा, हमारी जो बुक्स की जो जनरल रीडिंग रहती है, और हमारी फिजिकल फिटनेस हमारी मेंटल फिटनेस को बढ़ाती है। जनरल रीडिंग करते हैं तो हम लाइफ के बारे में समझते हैं, हम उधर रीडिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा डेटा बैंक है जिसके माध्यम से हम अपनी मेंटल फिटनेस को बढ़ा रहे हैं। लॉ में अगर रिट्स देखें या बहुत से ज्यूरिसडिक्शन ऐसे हैं कि उसमें हमको कुछ लीगल आर्गुमेंट्स हैं, कुछ लिंग्विस्टिक आर्गुमेंट्स हैं और कुछ आर्टिस्टिक आर्गुमेंट्स हैं, तो वो हमको एक्सप्रेशन देना है मेंटल फिटनेस से। जनरल रीडिंग करेंगे तो हम सोसाइटी के बारे में, लॉ के बारे, लोगों के अलग परसेप्शन के बारे में जानेंगे। कई लीगल ल्यूमिनरीज की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो हम पुरानी ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, कोर्ट वर्किंग के बारे में जानेंगे, उस समय के लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम कुछ ग्रेट राइटर्स या ग्रेट सेंट्स या उन लोग की बात पढ़ेंगे
तो उनके उन अनुभवों को जानेंगे जो हमारे इमोशनल और स्पिरिचुअल फिटनेस में काम आएगा। तो ये मेंटल फिटनेस है। तीसरी फिटनेस है इमोशनल फिटनेस। लॉयर्स के लिए इमोशनल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, जजेस के लिए इसलिए क्योंकि अगर इरिटेबिलिटी बढ़ी तो एडजुडिकेशन अफेक्ट होता है, कोर्ट रूम में एटमॉस्फेयर खराब होता है, और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव थॉट था वो खत्म होता है। लेकिन लॉयर्स के लिए थोड़ी दिक्कत दूसरी हो जाती है कि इमोशनल फिटनेस का आशय ये है कि 10 केस लगे अगर आपके, और 10 में से अगर 8 केस किसी दिन खारिज हो गए, वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं। और किसी दिन 10 में से 8 केस आपके अलाउ हो गए तो आप उस दिन बड़े खुश हो जाते हैं। किसी दिन 10 में से 10 ही केस खारिज हो गए तो कॉरिडोर में हम सब जानते हैं कैसी बातें होती है। तो ये इमोशनल जो फिटनेस है, क्योंकि आप देखें कि एक एवरेज जनरल वे में मैं असेस करता हूं लाइफ को कि डे टू डे हमारे जो मोमेंट्स ऑफ फेलियर्स हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं बजाय मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी के। मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी को मैं समझने की कोशिश करता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मारे हैं, 100 हैं उनके, 51 वनडे में, 49 टेस्ट में, या उल्टा होगा लेकिन 100 है। 100 शतक मारे, और हम सब जानते हैं कि शतक में जो 100वां रन जब बनता है या चौके से या दौड़ के, तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। 1 मिनट ताली बजाता है, बैट्समैन वेव करता है बैट को, सामने वाले बधाई देते हैं, और वो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद गार्ड लेके फिर से तैयार होता है अगले बॉल के लिए। तो सचिन तेंदुलकर की जो ग्लोरी है असली, वो 100 मिनट की है। उन 100वें मिनट में जब उसने सेंचुरी करी थी और पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था, तो वो उसके उस पूरे परिश्रम का अर्क था, उसके जीवन के संघर्ष का, मेहनत का, जो साधना करी, जो उसने त्याग करा, जो उसने परिश्रम करा, उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म वो 1 मिनट था। तो उस जैसे महान और सफल खिलाड़ी के जीवन में जब 100 मिनट की ग्लोरी है, बाकी कोई, कभी मैंने तो नहीं देखा कि 0 पे आउट हुआ और लोग पूरा स्टेडियम खड़े होकर ताली बजा रहा हो। लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं। 10 रन पे, 15 रन पे, 20 रन पे, 22 पे, 25 पे आउट हुआ, लोगों ने कभी ऐसी खड़े होकर आउटस्टैंडिंग तालियां नहीं दी हैं। तालियां 50 रन पे बनी है शायद, और 100 रन पे बनी है। 50 रन मिला लो तो वो 100 मिनट को 200 मिनट कर लो आप। 200 के 250 मिनट करोगे तो मिनट्स में 4 घंटे आते हैं 60 मिनट के हिसाब से। तो 4 घंटे की ग्लोरी है, 3 या 4 घंटे की। तो जो 3 या 4 घंटे की ग्लोरी और संघर्ष या असफलताएं कितनी रही। जब 0 पे आउट हुए तो पूरा उसका मेंटल फ्रेमवर्क शटर हो जाता होगा, कैसे अपने आप को रीअलाइन करता होगा। वो रीअलाइन इसलिए कर पाता था क्योंकि वो इमोशनली फिट था। लॉयर्स के लिए केस आपके आज खारिज हो गए, अब आप इमोशनली अपने आप को रीअलाइन कैसे करोगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान रखना है, तब आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो बना रहेगा। चौथी चीज है स्पिरिचुअल फिटनेस। ये इमोशनल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हम इमोशनली फिट होते हैं और जब हम स्पिरिचुअली फिट होते हैं, तब हम मेंटली और फिजिकली फिट होना शुरू होते हैं। तो स्पिरिचुअली फिट होने के लिए हमको जनरल रीडिंग कुछ ऐसी करनी है अपनी लाइफ में जिससे हम थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहें। हम कुछ एक ग्रैंड यूनिवर्सल डिजाइन को समझें, हम कुछ आध्यात्म की तरफ एक्सप्लोर करें, और वो हमारे अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्रिया योग, ध्यान, अलग रेकी, मेडिटेशन, जो भी है आपके तरीके वो हो सकते हैं, प्राणायाम,
कुछ भी कर सकते हैं आप इस तरह की, जो चीज़ें आप जिसमें हैं। कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। मैंने अपने वहाँ कोर्ट रूम में 3 या 4-6 ऐसी किताबें जो हैं, जो थोड़ी सी सेल्फ हेल्प है, उसमें योगी कथामृत भी एक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स भी है, मैंने अपने कोर्ट रूम में रखी है। लॉयर्स जो यहाँ अगर कोई ग्वालियर के आए होंगे तो आप उनसे पूछिएगा। कई बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि इसमें ये पढ़ा कि नहीं आपने, लॉ तो बता देंगे, पहले ये लाइफ की ये चीज़ बताओ। तो कई पढ़ के बताते रहते हैं, चलता रहता है। कई बार कुछ उन पे, एक राम की शक्ति पूजा वो कविता मुझे निराला की बहुत पसंद है, वो मैंने रखाई हुई है। जूनियर्स को कहता हूँ कि वो पढ़ो। एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए वो एक रामबाण का काम करती है। तो इस तरह से जब हम इमोशनल और स्पिरिचुअल फिटनेस रखेंगे तब हमको लाइफ में ये मालूम पड़ेगा कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हम इस स्टेज पे 1+1 एग्जैक्टली 2 हो। कई बार 1+1 1 ही रह जाता है, कई बार 4 हो जाता है। वो चीज़ समझने के लिए कई बार लगता है कि अरे केस बहुत अच्छा था, क्यों खारिज हो गया। कई बार लगता है केस इतना नहीं था, लेकिन खुश हो जाते हैं क्योंकि वो रिलीफ मिल गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये स्पिरिचुअल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इन अगर फिटनेस नहीं है तो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम है। आजकल ऑन एन एवरेज पहले जो स्पैन ऑफ अटेंशन था वो 2 से 4 मिनट का था। कोई व्यक्ति 4 मिनट तक एक ही तरीके से किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। हो सकता है जैसे अब मनीष नायर जी को नींद आ रही है तो कॉन्सेंट्रेट ये देखिए, ये स्पैन ऑफ अटेंशन ठीक हो गया। बहुतों को आ रही होगी पीछे। तो ये जो स्पैन ऑफ अटेंशन है ये हमारा मोबाइल के कारण कम हो गया है। 80 सेकंड का रह गया है कुछ। क्योंकि आप देखें व्हाट्सएप आते रहते हैं, हम देखते हैं कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि हमारा सबसे बड़ा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है आपको या कहीं। आप हर व्हाट्सएप मैसेज को बिल्कुल ऐसे देखते हो, कोर्ट में भी बैठे हो, ऑफिस में भी बैठे हो। ये है मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जजशिप का कि 10:30 से 5:30 तक मैं बिल्कुल इन चीज़ों से मुक्त रहता हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ है क्योंकि देखने का मौका ही नहीं है। उसके बाद देखना देखो, जो जरूरी होगा तो पहले ही बता देगा कोई। लेकिन हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन इससे कम हो गया है। वो स्पैन ऑफ अटेंशन हमारे आर्गुमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। वो आर्गुमेंट्स में ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि जब मैं ग्वालियर में अभी बेल रोस्टर और क्रिमिनल रोस्टर में था तो मुझे आर्गुमेंट्स करते थे लॉयर्स, तो मुझे एक समस्या ये आती थी कि जब केस पूछते क्या है तो वो तुरंत FIR पढ़ना शुरू कर देते थे। मैं कहता था कि FIR मत पढ़ो तुम, मेरे यहाँ FIR नहीं पढ़ना है, तुम ओरली बताओ कि ये केस में एग्जैक्टली हुआ क्या। 307 का है तो 4 लोग अगर एक्यूज हैं और 4 विक्टिम हैं, तो वो उसको इस तरह डेलीनेट नहीं कर पाते थे कि ये A ने इसको मारा, B ने उसको मारा, C ने उसको मारा। और बताना अगर सिंपल रहता था कि A ने इसको मारा, सिंपल इंजरी है, लाठी से मारा है, नॉन वाइटल पार्ट में मारा है, उसका केस बहुत अलग होगा। और जो B ने फरसे से मारा है, सिर में मारा है, ये वाली इंजरी है, उसका केस अलग होगा। लेकिन वो मिक्स करता था, वो बता नहीं पाता था। कई बार इरिटेशन होता था कि FIR पढ़ो, ये करो, बहुत सी चीजें बताएं, समझाएं। तो मुझे ये लगा कि नहीं, जब मैं उससे पूछूं तो पढ़ के आया, बोले हाँ पढ़ के आया है। मुझे ये लगा कि ये स्पैन ऑफ अटेंशन का खेल है। जब आदमी जब पढ़ता है तो उस समय जो विजुलाइज करता है वो बड़ा गलत करता है या करता ही नहीं है। उस विजुलाइज करने के लिए मैंने ये इसको दृश्यम विधि को डिवाइस करने का सोचा। फिर मुझे लगा किस तरीके से करें इसको, तो मुझे लगा कि फिल्में ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एंटरटेनमेंट है।
हर कोई आदमी इसको पसंद करता है, फिल्में देखता है, अलग अलग रुचि की हो सकती है। और दूसरी चीज कि ऑडियो विजुअल है ये। जब आप देखोगे, एक तरह से वो दृश्यम फिल्म आपने अगर देखी होगी सब लोगों ने, तो उसमें भी यही बताया है कि जो विजुअल्स है वो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट रहते हैं और हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए वो फिल्म को लिया। अब फिल्म मुझे लगा कि कौन सी ली जाए, तो शोले जो ऐसी फिल्म है कि हालांकि युवा लोग, जो लोग ने देखी नहीं होगी, जो नए बच्चे हैं शायद उन्होंने ना देखी हो, लेकिन अमूमन सभी लोगों ने 1 या 2 बार तो उस फिल्म को देखा हुआ है। उसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से करा है कि इस फिल्म में मैं आपको 12 या 13 मिनट की एक क्लिप दिखाऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर 2 अपराधियों को पकड़ा और वो उनको ले जाने का, थाने पे लाने का कोई विकल्प नहीं मिला, तो वो मालगाड़ी में बैठ के आ गए। इंस्पेक्टर हैं संजीव कुमार और एक्यूज जो हैं वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हैं। और रास्ते में उस मालगाड़ी को डाकुओं ने लूटने का प्लान बनाया है और वो डाकुओं ने लूटा। वो लूटने में अमिताभ और धर्मेंद्र का जो कैरेक्टर है, जय और वीरू का, उन्होंने उसको इंस्पेक्टर से कह के डाकुओं से लड़े और उनको मालगाड़ी को बचा लिया। अगर रियल टाइम में ये एक ऑफेंस होता, कल्पना करें आप कि अगर रियल टाइम में एक ट्रेन जा रही है और उसको डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, तो एक बहुत बड़ी घटना होती जिसमें 2-3 लोग मारे भी गए, शायद डाकू ज्यादा मारे गए थे। तो ये जो डाकू मारे गए, ये जो पूरी घटना हुई, अगर रियल टाइम में एक ऑफेंस बनेगा तो कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और कैसे उसकी चार्जशीट पेश होगी, ये उसका जिस्ट है। अब ये मैंने तो अपने लेवल पे उसकी एक पूरी ये चार्जशीट भी बनाई है। अब इसमें अब आप देखेंगे कि क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उसमें आप महसूस करें कि शुरुआत वहां से होगी कि कम से कम 50 किलोमीटर तक वो मालगाड़ी चली है, जिसमें मेरे ख्याल से 5, 7, 10 पुलिस स्टेशन पड़े होंगे, जुरिस्डिक्शन उनका। तो किस पुलिस स्टेशन में 0 पे कायमी होगी और किस पुलिस स्टेशन पे FIR रजिस्टर होगी उसकी, और जब FIR रजिस्टर होगी तो किन किन ऑफेंसेस में होगी। आप सोचेंगे कि हाँ क्या है, मर्डर हुआ, 302 हो सकता है, 307। अब आप कल्पना करिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए जैसे डाकुओं ने दौड़ाए, तो आप देखेंगे कि 307 है, 302 है, 353 है, 332 है, 396 है, 397 है। और MPDB के वहां अगर धौलपुर और मुरैना तरफ हुई है, मुरैना में, तो वहां डकैती व्यापारण अधिनियम है वो लगा होगा, आर्म्स एक्ट लगा होगा, रेलवे एक्ट लगा होगा, क्रूअल्टी टू एनिमल लगा होगा एक्ट, कितने सारे एक्ट लगे होंगे और कितने प्रोविजंस लगे होंगे, आगजनी सब हो गई उसमें। वो जब अगर होगा तो क्या, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर बहुत होशियार होगा तो क्या वो गब्बर सिंह को 120B में ला सकता है? तो गब्बर सिंह वहां नहीं है, आप ध्यान से देखें, गब्बर सिंह नहीं है, तो क्या 120B में गब्बर आ सकता है? हो सकता है। वो एक आध स्टेटमेंट बनवाए गांव वाले का किसी का कि 4 दिन पहले गब्बर सिंह आया था, वो लकड़ियां रेलवे उस पर रखवा रहा था पटरी पे और कह रहा था कि इस बार कोई बचने ना पाए। तो पुलिस ऑफिसर 1-2 बैठे हैं, जो यहाँ वकील चौधरी जी बैठे हैं, तो हो सकता है 120B में गब्बर भी आ गए। प्रश्न आ जाएगा कि मालगाड़ी में क्या पैसेंजर्स बैठ के जा सकते थे? क्योंकि मालगाड़ी थी, वो गुड्स ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। तो इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और ये एक्यूज, ये लोग कैसे बैठ गए? डिफेंस पूछ सकता है ये क्वेश्चन, फिर प्रोसिक्यूशन जवाब दे सकता है। 24 घंटे में पुलिस वाले को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 24 आवर्स का, वो उसने उसको करने के लिए ये करा। तो उसमें
ये जो पहला फेज है ये मैं दिखा के आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये अगली बार अब आप ही को करना है। ये एक यहां मैं केवल लेक्चर देके नहीं चला जाऊंगा, आपको 4 टीमें बना सकते हैं आप अगर चाहें तो। मैंने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ 4 टीमें बनाई। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि अब आप उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर इस फिल्म को देखेंगे, क्लिप को, तो आपको समझ में आएगा कि उसका पर्पस क्या है। एक जो टीम रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टिगेशन, एक टीम रहेगी प्रोसिक्यूशन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ, ये बताएंगे। तीसरी टीम है डिफेंस, जो एक्यूज की होती है, और चौथी टीम रहेगी जजमेंट राइटिंग की, जजेस की। उसका ज्यादा रोल नहीं है, कमिटल वगैरह का है, ये सब है। तो धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी में मैंने ये करा कि एक एक स्टूडेंट को एक एक टास्क दिया। एक स्टूडेंट बना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक स्टूडेंट को बनाया जो 27 के जो एविडेंस एक्ट के जो मेमो होते हैं उनको तैयार करेगा। तो जब 27 का मेमो, जैसे सपोज वाल्मीकि जो है वो 27 का मेमो तैयार करेंगे, तो इनको 27 के मेमो तैयार खुद ही करने हैं जो एक्यूज के बनते हैं, और 27 के मेमो का जो लॉ है, कितना उसका स्टेटमेंट रिकवरी के और प्रोडक्शन ऑफ जो इक्विपमेंट्स है या एविडेंस है, उसका किस एक्सटेंट तक डिस्कवरी को एक्सेप्टेबल माना गया है लीगली, इस पे पूरा लॉ वो 27 के मेमो पे ये करेंगे। तीसरे व्यक्ति को जो है आर्म्स एक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिफिकेशन सेक्शन 339 में जो होता है वो पूरा नोटिफिकेशन तैयार करना है, क्योंकि आर्म्स एक्ट भी है इसमें। तो जब आर्म्स एक्ट में तैयार होगा तो वो नोटिफिकेशन और आर्म्स एक्ट का उससे संबंधित पूरा लॉ करना है। चौथे व्यक्ति को जो या तो जो आर्म्स एक्ट वाला है, उसी व्यक्ति को यह टास्क दिया जाएगा कि सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, क्योंकि वो डीएम ने नोटिफिकेशन दिया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सीआरपीसी में क्या क्या पावर्स हैं, जब वो सीआरपीसी के पावर्स 133 से 145 तक के जो हैं वो डिस्कस करेगा और दूसरे जब डिस्कस करेगा, तो वो बच्चे को ये मालूम पड़ेगा कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ये भी पावर्स हैं। ऐसे ही 161 के, तो हर किसी को एक फॉरेंसिक रहेगा, एक पोस्टमार्टम रहेगा। जैसे इसमें मैंने एफआईआर बनाई पूरी, एक एमएलसी बनी हुई है ठाकुर बलदेव सिंह की, एक 161 सीआरपीसी के हैं, एक ट्रेन ड्राइवर है, सपोज उनका नाम राम प्रसाद था, तो वो उनकी ट्रेन ड्राइवर की 161 के हैं। फिर एक ने स्पॉट मैप बनाया है, एक ने सीजर मेमो तैयार किए हैं, एक ने फिर मर्ग इंक्वायरी भी कराई कि क्या था, अप्राकृतिक मौत क्या थी, पीएम रिपोर्ट हुई उसमें। फिर 161 के श्याम थे, एक फार्मर जो वहां गड़ी वो चला रहे थे भैंसे या बकरियां, और डाकुओं को लड़ते हुए या ये सब ट्रेन डकैती देखी उन्होंने, वो हैं। फिर टीआईपी हुई, क्योंकि 2-4 डकैतों के पट्टे अट्टे निकल गए थे, गिर पड़े थे, भाग गए वो, तो वहां लोगों ने पहचाना वो कि यही है वो व्यक्ति जो उस दिन घोड़े पे 303 लिए बैठे थे। फिर अरेस्ट मेमो है, सपोज कोई डाकू पकड़ा गया है तो उसका अरेस्ट मेमो कैसा बनेगा, ये सारे वो लॉयर्स ही या वो स्टूडेंट्स ही करेंगे और बनाएंगे। जब वो भरेंगे और बनाएंगे तो उनको ये समझ में आएंगे एग्जैक्टली अरेस्ट मेमो क्या होता है और अरेस्ट मेमो में क्या डिफिशिएंसीज रहती हैं, जब वो एज डिफेंस लॉयर पूछेंगे तब। तो ये जब चार्जशीट तैयार होगी उसकी और पेश होगी, उसके बाद फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जैसे एक क्वेश्चन आया कि कमिटल होगा, अगर स्पेशल एक्ट है तो वो स्पेशल जज के यहाँ जो जुरिस्डिक्शन होगा उनके यहाँ जाएगा, तो मजिस्ट्रेट उसको कमिटल करेगा। तो वो लॉयर जजेस का जो विंग है वो उसको कमिटल क्या होता है ये सब 193 वगैरह ये सब में वो करेंगे। और उसके बाद
संभावनाएं अनंत हैं। आप 10 विटनेसेस से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वहां मैंने धर्मशास्त्र में 2 या 3 विटनेसेस से कराए थे, जिसमें एक आईओ था और एक वो जो ट्रेन का ड्राइवर था जो घायल हुआ था, जो धर्मेंद्र जिसके साथ रहता है, और वो जिसको डाकू लोग गन पॉइंट पे गाड़ी पीछे ले जाने को कहते हैं। जब वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आईओ का, तो उसमें बैलिस्टिक का भी आएगा, प्लस एविडेंस एक्ट का एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या होता है ये आएगा। फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो डिफेंस वाला ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर बीच में 216 सीआरपीसी की एप्लीकेशन ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज लग जाएगी, 311 रिकॉल ऑफ विटनेस लग जाएगी, 319 सब्सिक्वेंट स्टेज पे एक्यूज एरे करने के लिए हो जाएगा। इस तरह की जो 10-12 जो प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन बीच बीच में लगेंगी और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ट्रायल पे ये देखा जाएगा। तो ये 2 या 3 सिटिंग का केस है। वहां मैंने 2 सिटिंग में करा। धर्मशास्त्र में पहले बार 2 या 3 घंटे लगे, 4 घंटे मुझे ये सब कॉन्सेप्ट को समझाने में, और दूसरी बार फिर 2-4 महीने लगे। अप्रैल 23 में मैंने करा था पहला फेज और अगस्त में मैंने दूसरा फेज करा, तो 4 महीने लगे। तो उन 4 महीने में उन्होंने वो चार्जशीट तैयार करी। ये उन लोग की मेहनत से ही, गाइडेंस मेरा रहा, 1-2 लॉयर्स से मुझे ग्वालियर में मदद मिली, उनके साथ मैंने उनको कोऑर्डिनेट करवाया। तो उन्हीं लोगों की मेहनत से कुछ इनपुट मेरे रहे, कुछ उन लॉयर्स के रहे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मॉडल चार्जशीट, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू ऑफेंस बट थोड़ा वो ही था। उससे वो बच्चों को ये समझ में आया कि एग्जैक्टली क्लासरूम और कोर्ट रूम के बीच में जो डाइकोटमी है या जो डिस्टेंस है वो दूर होता है। नाउ वो जो कोर्ट रूम में जो होता है, अगर क्लासरूम में अगर हम समझा दें उसको, इस तरह के 3 या 4 सेशंस अलग अलग फिल्मों के, मैंने कुछ और भी निकाले थे, 1-2 इंग्लिश फिल्मों के भी निकाले थे जिसमें क्राइम्स होते हैं। तो अगर उनको हम पूरा इसमें चार्जशीट बनाने में कर लें, तो जो बच्चे हैं या लॉयर्स हैं, जैसे मैं सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल साइड की हमारा ऑफिस रहा, मुझे क्रिमिनल लॉ का उतना एक्सपोजर नहीं था। जो मैंने सीखा वो ग्वालियर में वहाँ के लॉयर्स या उनको सुन के या अपने समझ से करा। वैसे ही अगर लॉयर्स को अगर इनिशियल स्टेज पे इस तरह के वर्कशॉप से अगर हम ये समझा सकें, तो अभी जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा हुआ बड़ा वो थ्योरेटिकल सीखा हुआ है, बड़ा टेक्निकल लगता है। जब हम उसको प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो लीगल प्रोफेशन में इन दोनों के बीच में बड़ी दूरी है। उस दूरी को पाटने का ये प्रयास है कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक दिखाऊंगा और थोड़ा सा अलर्ट होके देखिए, क्योंकि मैं हो सकता है 1-2 लोगों से कहानी पूछूं। तो बाद में मैंने देखा था हमारे बार प्रेसिडेंट जो हैं हाईकोर्ट बार के, इनानी जी भी हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा? सर ये घटना एक कुछ पुराने ज़माने में जो होता था, ट्रेन लूट की घटना थी। वो जो उसमें एक वरिष्ठ ऑफिसर जा रहे थे कुछ कैदियों को लेकर, उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करा। आज की स्थिति में तो हो नहीं सकता है कि उन पर कार्रवाई हो जाती।
लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उस घटना को जो रोका है, उसके हिसाब से उन अपराधियों पे भी कोई ऑफेंस नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने उन पुलिस ऑफिसर के कहने पर करा था। निश्चित तौर पर पुलिस ऑफिसर ने उसके कोई सबूत भी दिए होंगे कि मेरे कहने पर ये सब कुछ इन्होंने करा। मिश्रा जी, आप बताएंगे कुछ, ये क्या अगर ऐसी घटना हुई होगी, अगर पूछा जाए तो इन्हें, अगर कोई सेशंस जज पूछे कि बेल के समय कभी एक्यूज का वकील नहीं आया और आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और आपसे पूछे कि मिश्रा जी क्या कहानी क्या है, इन्हें क्या होता है कि 307 तो 1000 तरह के होते हैं, डकैतियाँ 200 तरह की होती हैं, 302 हजारों तरह के होते हैं, तो घटना क्या है कि जिसमें 307, 302, 396, 97 सब आ गया है। अगर ये आपसे पूछा जाए ताकि कि रामलाल ने श्यामलाल को मारा क्या, या 4 डाकुओं ने किसको मारा क्या, या डकैती किस तरह की थी, घर में घुस के थी, ट्रेन में थी, कैसी थी, तो अगर वो फैक्ट्स को पूछा जाए तो आप 10-12 लाइनों में कैसे बताएंगे? ये ट्रेन को लूटने का प्रयास किया गया था और उस दौरान ये घटना घटित हुई है और डाकुओं ने गोलियां चलाई, पुलिस ऑफिसर को भी लगी और दूसरे और उनको लगी, और इसी प्रकार पुलिस ऑफिसर्स ने भी जो गोली चलाई है डाकुओं को लगी। और इसमें किसने किसको मारा, अगर ये उस पर आ गया, जैसा आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में आ गया, तो उसमें तो स्पष्ट दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। लेकिन इसका आई विटनेस कौन है और किसने इस घटना को देखी है, वो जब तक पूरी विस्तृत रूप से बता नहीं पाएगा तब तक स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएंगे कि कौन ने किसको मारा है। और कोई बताना चाहेगा? एक मिनट। डकैती का कॉमन इंटेंशन था जिसमें गब्बर सिंह और उसकी पूरी गैंग शामिल थी, तो सबसे पहले कॉमन इंटेंशन में ये सब आएंगे। फिर रेलवे पे डकैती है, रेलवे एक्ट भी आएगा, इलीगल हथियार है सारे के सारे, इसलिए आर्म्स एक्ट भी आएगा, और जो घटनाक्रम में हत्या वगैरह हुई है उसके लिए भी सबका कॉमन इंटेंशन आएगा, कॉमन आइडिया आएगा। ये सारे ऑफेंस एक साथ है। रंजीत, आप कुछ बता रहे हैं? ये जो पूरी घटना हुई है इसमें ऑफेंस 2 पार्ट में हुआ। एक पार्ट में हुआ है जो डकैती डाकुओं द्वारा की गई है, और दूसरा जो पार्ट है वो पुलिस ऑफिसर्स और उसके द्वारा जो कस्टडी में ले गए एक्यूज उनके द्वारा की गई है। तो जो रिटेलिएशन में किया गया ऑफेंस है वो सेल्फ डिफेंस में आएगा। तो पुलिस ऑफिसर और जो अक्यूज पर्सन्स हैं उनके ऊपर कोई भी मर्डर के चार्जेस और ये सारी चीजें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है। और कोई कुछ बताएगा? मैडम मैडम नारी शक्ति की तरफ से और भी अगर हो तो कोई सजेशन? It can be taken in favor for the accused कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन की या पुलिस की सेफ्टी के लिए अपनी को ध्यान में नहीं रखकर उसने हेल्प किया है, तो it can be taken in favor for the accused also. और कौन? इधर। अच्छा, आप सर, जो ट्रेन जा रही थी उसमें पहले तो उन्होंने बाधा उत्पन्न करी, तो वो जो बाधा उत्पन्न करी तो शासकीय कार्य में एक बाधा उत्पन्न हो गई। दूसरा, जब उन्होंने हमला किया तो ये हमले का प्रयास हो गया, उस डकैती, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे तो इसलिए डकैती का प्रयास हो गया। फिर उन्होंने गोलियां चला के उसमें हत्या करी, तो वो हत्या का अपराध एक बना उनका। दूसरा, उन्होंने चाकू का भी इस्तेमाल करा, तलवार का भी इस्तेमाल करा इसमें, तो ये आर्म्स एक्ट का भी इस्तेमाल हुआ। और इसमें हत्या का प्रयास, धर्मेंद्र के ऊपर जब उन्हें चाकू चलाया वहाँ हत्या का प्रयास भी हुआ इसमें। और कोई? सबसे पहले तो पहला कोइंसिडेंस तो पहले प्लानिंग तो ये थी कि एक डाकू के समूह को एक ट्रेन को लूटना था, दैट इज प्री प्लान इंटेंशन। ये एक अलग सीक्वेंस था। कोइंसिडेंटली उस घटना को कारित करते वक्त वहां पर नोइंगली या अननोइंगली एक पुलिस ऑफिसर अपने 2 जवानों के साथ 2 अक्यूज्ड, प्रपोज्ड अक्यूज्ड के साथ ट्रैवल कर रहा था। ये दूसरा सीक्वेंस है। तीसरा, जब लूटने गए तो लूट करते वक्त या डेकॉटी करते वक्त चलती ट्रेन के अंदर उनके साथ साथ क्या इंसिडेंट हुए, ये पूरा 15 मिनट का सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में
ना तो डाकुओं को मालूम था कि उसमें पुलिस ऑफिसर है, ना पुलिस ऑफिसर्स को मालूम था कि इस ट्रेन को लूटने डाकू आने वाले हैं। तो इट्स अ कोइंसिडेंट इंसिडेंट है पूरा के पूरा यहाँ पे। That the police officer was carrying 2 accused to surrender before 6 o'clock to police station. That is the first thing. The dacoity was well planned, but by the second incidents. So both got interlinked with each other only because the officer got through to safeguard the dacoity. कोई भी ऐसे घटनाक्रम में जो आपराधिक घटनाक्रम में जो है 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस का पार्ट। प्रोसिक्यूशन का पार्ट अलग एंगल से देखा जाता है और डिफेंस का पार्ट अलग एंगल से देखा जाता है। यहाँ प्रोसिक्यूशन का जो पार्ट होगा उसमें सबसे पहले ये विचार किया जाएगा कि मुकदमा क्या दर्ज होगा, कैसे दर्ज होगा। सबसे पहले जो पुलिस वाला जो रहता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो पहले घटनाक्रम के संबंध में पूरा विचार करके एक मुकदमा रजिस्टर करेगा। धाराएं और घटनाक्रम तो आपके सामने सब है ही, सामने बता दी धाराएं, और सबको मालूम भी है क्या क्या धाराएं लगना है। अब पुलिस ऑफिसर किस क्लेवरनेस के हिसाब से इसको मुकदमे को रजिस्टर करेगा, ये प्रोसिक्यूशन की आर्ट है। ये जो है प्रोसिक्यूशन का जो केस बनेगा इसमें ये है कि वो एक डकैती का अटेम्प्ट टू डकैती का प्रकरण दर्ज होगा, उसमें सारे कोरिलेट होंगे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और सारे आर्म से सब। फिर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है ये जो टेबल कर रहे थे वो सारे विटनेसेस बन गए, और डिफेंस का पार्ट ये है कि वो आइडेंटिफिकेशन उनका प्रॉपर है कि नहीं, सीजर है कि नहीं, वो सेकंड पार्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो समस्या ये आएगी कि एफआईआर दर्ज होगी किसके खिलाफ? अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब पता ये करना होगा कि इसमें एक्चुअल एक्यूज कौन है। सभी डाकू जो थे वो मुंह पर पट्टा बांधे हुए थे। 2 डाकू जब गिर रहे थे तब उनके पट्टे खुल चुके थे, वो देख सकते थे। अब सवाल उठता है कि ये जो 2 व्यक्ति जो डाकू जिनके चेहरे दिखे थे वो कौन थे? वहां कोई प्रेजेंट था क्या? स्पॉट पे कोई प्रेजेंट था क्या उनको देखने के लिए? तो ये सबसे बड़ी समस्या तो जो पुलिस अधिकारी को आती है कि अननोन एफआईआर में एक्चुअल एक्यूज को ट्रेस कैसे करना। तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या वो सबसे पहले वो आएगी। अब अगर कोई व्यक्ति देख रहा है वहाँ, जैसा श्रीमान ने कहा था कि कोई बैल बकरी चलाने वाला, भैंस चराने वाला अगर कोई वहाँ पर उपलब्ध है तो उससे पूछा जाएगा कि ये लोग कौन थे। हालांकि कोई भी गांव का आदमी डकैतों के खिलाफ, ये जनरल मानसिकता है, जानते हुए भी कोई नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले समस्या होगी कि ये लूट किसने की है, डकैती किसने डाली। ये अटेम्प्ट टू डकैती तो था, डकैती कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अटेम्प्ट टू डकैती था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू जो ये सब था। लेकिन इसमें सबसे समस्या जो आएगी वो उनको ट्रेस को टीआईपी होगा, ये सब जो होगा वो मेरा और कोई अगर है तो मैं एक जज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। श्रीवास्तव साहब रहे हैं, वो तो 35 साल या 40 साल रहे होंगे जज, मैं 8 साल का जज हूँ। ये प्रॉब्लम आती है जब एक केस को, क्योंकि अगर 80 बेल लगी है तो ये मान के चलिए कोई बेल पढ़ के नहीं आते। जब लॉयर खड़ा होता है तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है क्या केस है, तो बताता है साहब 302 का है। इस केस में बताएगा जैसे कि साहब ये डकैती का केस है, तो मैं पूछूंगा कि मैं हमेशा चार्जशीट जो केस डायरी है वो गवर्नमेंट एडवोकेट के पास ही रहती है, मैं उसको अपने पास नहीं लाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने पास ले आऊँगा, मैं देखना शुरू करूँगा तो वो लॉयर को आर्गुमेंट्स का मौका नहीं मिलेगा। लॉयर को आर्गुमेंट का मौका नहीं मिलेगा तो लॉयर डेवलप नहीं होगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये घटना क्या हुई थी। दवे साहब ने कहा, जो बताया कि एक
डकैती प्लान थी और इंसिडेंटली ये इंस्पेक्टर आ गए। ये मैं यही वाली बात फैक्ट्स पूछना चाहता हूँ हमेशा उनसे, लॉयर से। ये देखिए परसेप्शन का डिफरेंस आ रहा है। आप लोगों ने उसमें विशेषण जोड़ दिए कि डकैती तो होगी नहीं। एक ने कहा प्रोसिक्यूशन कैसे प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन अभी प्रूव करा ही नहीं, अभी तो पहले फैक्ट्स ही नहीं आए। हम हमेशा लॉ को पहले रख देते हैं, इंटरप्रिटेशन को और फैक्ट्स को बाद में लाते हैं। मेरे हिसाब से केस एक सिंपल भाषा में कहें, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने 2 बदमाशों को पकड़ा, 24 घंटे के अंदर संवैधानिक बाध्यता है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो मालगाड़ी में बैठ के वो आ रहे थे। डकैतों का प्लान था कि उस मालगाड़ी को लूटना है। उन्होंने लूटने का जो प्रयास किया, ये जो बदमाश थे इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलके उस डकैती के प्रयास को निष्फल किया। ये अगर कोई मुझे लॉयर बता देगा तो मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर शोले की खिंच जाएगी। अगर ये पूरी घटना आप अपने घर जाके बताएंगे तो क्या बताएंगे अपने मदर फादर को कि हम एक फिल्म देख के आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, ये हमारी स्टोरी टेलिंग की आर्ट है, ये हमको डेवलप करना है। हम ये स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाते हैं। वहां भी यही होता है, लॉयर कहते हैं साहब ये बहुत निर्दोष है, झूठा केस बना दिया। मैंने कहा बिल्कुल होगा, पहले ये बताओ कि झूठा तुम पे आरोप क्या लगा है। पहले झूठा आरोप बता दो कि प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि अभी सही है गलत है, पहले ये बता दो कि फैक्ट्स क्या है। जैसे ही आपने ये बताया कि ऐसा हुआ है, तो चूंकि मेरा अपना डेटा बैंक इतनी फिल्मों का या इतनी ट्रैवल का, इतनी रीडिंग का है, तो मेरा दिमाग जो है ऑटोमेटिक उस चीज को रजिस्टर करना शुरू करेगा कि ऐसी घटना हुई होगी। एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगा। 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें मकान के उस तरफ दूसरा भाई रहता था। इस भाई का बेटा आया, डंडा लेके उसने उसको मारा और मार के उसने उसको घायल करा, सिर फट गया, 307 बना। जैसे ही उनने कहा तो आदमी वहां से शुरू करता, साहब इनने हमारी जमीन दबा ली थी। अब जमीन क्यों दबाई थी कि 307 बना, ये बता ही नहीं रहा वो। अगर वो ये फैक्ट्स बता दे कि साहब 2 भाइयों का झगड़ा है, दोनों की बाउंड्री है, फैमिली डिस्प्यूट जमीन को लेके था, एक दिन दोनों गुस्सा हुए, वो भाई ने लाठी लेके घर में घुसा और उसको मारा, सिर फट गया। तब मेरा अगला क्वेश्चन आएगा, अच्छा सिर फटा, किसने मारा? उन्होंने कहा इसने मारा। मेडिकल क्या आया? फिर मैं उस लॉजिकल क्वेश्चंस पे पहुंचूंगा। तो आप जज को लॉजिकल क्वेश्चंस पे पहुंचने का मौका नहीं देते, इसलिए क्योंकि आप उस फैक्ट से ऑब्सेस्ड हैं कि हमारा क्लाइंट क्या है। आप इस फैक्ट से ऑब्सेस्ड मत रहें, आप इस फैक्ट से ऑब्सेस्ड रहें कि फैक्ट्स क्या थे। जैसे ही फैक्ट्स मालूम पड़ते हैं तो मैं ऑटोमेटिक उसमें कई बार कहता हूँ कि अरे इसका तो कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट एडवोकेट फिर कुछ भी कहता रहे, मैं कहता हूँ नहीं, इसमें इसका रोल नहीं है, सिंपल इंजरी है, पैर में लगी है। कुछ दिन पहले एक ऐसी केस है, 10-12 एक्यूज बने, उसमें एक एक्यूज है जिसने फरसा मारा है और उससे एक आदमी की डेथ हुई है, दूसरे आदमी घायल हुए हैं, उनके कारण 307 बनाया है। लेकिन उसमें किसी को उन्होंने जमीन पैर पे मारा, हिप्स पे मारा, पीठ पे मारा, वो सब 307 वाले हैं, उन सबको बेल होती गई। क्यों? क्योंकि वो 302 वाले नहीं। अब वो फैक्ट्स अगर पूरे बता दिए जाए, नहीं तो वो सब मिक्स कर देते हैं कि साहब ये लड़ाई ऐसी थी, वो हम तो गलत आए थे, हम तो वहां अपने परिवार रिश्तेदार के आए, हमको झूठा फंसा दिया, हम सरकारी नौकरी में इसलिए हमको झूठा फंसा दिया। वहां से शुरू हो जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो वैसा रहे जो फैक्ट्स ओरिएंटेड रहे, तब हमारा लॉ आएगा। लॉ तब आएगा जब फैक्ट्स हमारे सामने आ जाए। तो जो ये स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है, इसको मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से। जब आप ये अगर विजुलाइज करेंगे पूरी फिल्म को, जब आपने बिल्कुल इसमें, तब आप कहेंगे अरे डिफेंस क्वेश्चन पूछेगा। एक डिफेंस पूछ सकता है, शराब पी उस आदमी ने, ड्राइवर ने, तो उसने रेलवे एक्ट में डिसिप्लिनरी उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है, वो एक प्रोसीडिंग अलग हो सकती है कि शराब पी रहे थे। एक्यूज लोगों की टेस्टिमनी की क्या स्टेटस रहेगा, वो एक अलग डिस्कशन हो सकता है। एक्यूज इसमें जय वीरू एफआईआर में कंप्लेनेंट हो सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस का आंसर देने नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ क्वेश्चंस आपकी रेज करने की क्षमता को बढ़ाने आया हूँ। जितने क्वेश्चंस आप रेज करेंगे आपको आंसर्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुद मिलेंगे। कोई भी एक जजमेंट शायद आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। इसमें जजमेंट 10 तरह के हो सकते हैं, एक्विटल भी हो सकते हैं, कन्विक्शन भी हो सकते हैं, गब्बर सिंह भी आ सकते हैं। 120B में मैंने बताया कि वो जो लकड़ियां रखी थी, वो कहते हैं कि 4 दिन पहले गब्बर आए थे और कह रहे थे इस बार कोई बचने ना पाए, ट्रेन को लूटना है, ये वो। तो कोई स्टेटमेंट 120B में ले लो उनको, कालिया आ जाएंगे, सांबा आ जाएंगे। कहने का मतलब कि किस तरह से हमको लेना है, 34 कैसे आएगा, क्या आएगा, वो आइडेंटिफिकेशन TIP है, 27 का मेमो है, रिकवरीज बहुत सारी हैं, नुकसानी पंचनामा है, बनेगा घोड़े मर गए, घायल हो गए, ट्रेन वो नुकसान हुआ, तो ये सब चीजें। तो जैसे जैसे एक एक आदमी वो चीज करता जाएगा, उसको उस क्रिमिनल लॉ में वो प्रोसीजर पूरी समझ आती जाएगी। तो जब ट्रायल खत्म होगी तो वो जो व्यक्ति है, नाउ ही वुड बी अ डिफरेंट लॉयर देन द प्रीवियस टाइम। जो पहले था उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और ये ध्यान रखें आप कि किस तरह से हमको जब फैक्ट्स बताने हैं तो हम उस फैक्ट, क्योंकि यहाँ तो आपने फिल्म देखी इसलिए अब आप कंसीव कर लो कि ऐसी कहानी रही होगी। जब FIR आती है तो आपके पास वो उसका जो कि वो सहायक उप निरीक्षक ने लिखाया या इनने फलाने ने बताया कि इस तारीख को ऐसा ऐसा हुआ था, 4 भाई थे, ये ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये पूरा 10, 12, 15 लाइन का। तो वो 10, 12, 15 लाइन आपको पढ़नी है और फिर इमेजिन करनी है। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगा जैसे फिल्म तरीके कैसे हो सकती है कि 2 आदमी थे, 2 ने मारा। तो आप एक कल्पना कर लीजिए कि धर्मेंद्र है कि अमिताभ है या गब्बर सिंह है, कैसे कल्पना कर सकते हैं आप। और उस फिल्म को कि ऐसी घटना हुई होगी जिस घटना के कारण ये अपराध बना। जब ये इमेजिनेशन आप अपने दिमाग में करेंगे वो तब कर पाएंगे जब आपका स्पैन ऑफ अटेंशन सही रहेगा। इसलिए वो मैंने सारा जो बताया कि हमारा मोबाइल के कारण स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया है। हमारा 80 सेकेंड, 90 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2-4 मिनट के बाद हम मोबाइल देखने लगते हैं कि क्या कोई फ़ोन तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं है। वो वाली चीज़ के कारण हम उसको जो पढ़ते हैं FIR, मुझे ऐसा लगा वहाँ के कई बच्चों से डिस्कशन हुआ, ये समझा मैंने, तो वो चीज़ एक्सप्रेशन में नहीं आती। तो वो आप लोग को करना है। और मैं दुबे जी को कहूँगा कि 2-3 लॉयर्स को मैंने वहाँ ग्वालियर में ये इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है, तो उनके साथ मैं इनको कोऑर्डिनेट कराऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो 4 टीमें इस तरह बनाई जा सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी कर सकता है। आज आपके पास श्रीवास्तव साहब का इतना अनुभव है, उन्होंने सैकड़ों ट्रायल्स कंडक्ट करवाई हैं, जजमेंट्स दिए हैं, हाईकोर्ट जज के तौर पर उन्होंने किया है। कभी कोई उनकी अगर मार्गदर्शन लगे तो उनका ले सकते हैं। यहाँ सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो आप वो 4 टीमें बना के, मैं प्रसन्ना भटनागर जी और विक्रम दुबे जी, वाल्मीकि, इन सब के साथ में कोऑर्डिनेशन करवा दूंगा। और फिर अगर आप लोग चाहें तो उसको इस तरह 4-4 टीमें बन सकती हैं। एक टीम में एक इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और जजमेंट, ऐसी 4 टीमें बना लो। चारों इन्वेस्टिगेशन करके देखो कि किसका इन्वेस्टिगेशन बेहतर है। ये भी आप कर सकते हो, एक कंपटीशन। आगे मूट कोर्ट इस तरह का हो सकता है कि एक टीम, सारी टीमों को 10 दिन का समय दिया, एक क्लिप दिखाई और कहा कि आप लोग चार्जशीट तैयार करिए, अपना प्रोसिक्यूशन का केस तैयार करिए, डिफेंस करिए और फिर वो करिए। इस पे मूट कोर्ट हो सकते हैं। वो आगे की चीज है, क्योंकि ये बड़ा इनिशियल कॉन्सेप्ट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अभी इनिशियल स्टेज में है। धर्मशास्त्र जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करा, उसके बाद ये पहला मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सितंबर 22 में पुलिस ऑफिसर्स के लिए ग्वालियर में, और एक मैंने हमारी जुडिशियल एकेडमी जो है जजेस की, सिविल जजेस और डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए जबलपुर में, तो उसमें जजेस के पर्सपेक्टिव से कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या उस तरह से कैसे करना है। और ये जो लॉयर्स के लिए है शायद ये पहला मौका है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र में स्टूडेंट्स थे, वो लॉ के स्टूडेंट्स थे, वो लॉयर्स नहीं थे।
ये लॉयर्स के लिए पहला है। तो आप लोग अगर जैसा करना चाहेंगे तो आप लोग इस तरह से वो टीम बना के ये कर सकते हैं। इसीलिए ये मैंने रखा था। आप लोग ने बहुत पेशेंटली मुझे सुना 2 घंटे, और वो भी पोस्ट लंच सेशन में। थैंक यू। This was an interactive session, बहुत ही अच्छा। और सबसे सही बात, सबसे relevant point जो ये है that we the lawyers here are healers. How can we be better healers? How can we express ourselves in a better way so that even the judiciary and the legal fraternity both can work towards achieving justice? तो ये justice oriented approach कैसे develop होगा? वो bridge जो gap bridge कर दे, ऐसा bridge कैसे बनेगा? Such an idea, we are very very grateful, sir. For a well-deserved standing ovation to Justice Anand Pathak ji. For vote of thanks, I may call upon Advocate Prasanna ji to come on the stage. जस्टिस पाठक साहब, एक नए तरीके से आपने इस लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह से हम लोग मूड कोर्ट में करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती है, हम लोग भी जाते हैं मूड कोर्ट में, लेकिन इस तरह से मूड कोर्ट नहीं होती। और तैयार मिलता है मटेरियल, हम जाके बैठ गए पार्टिसिपेट करने के लिए, जज बन के बैठ गए, बच्चे पहले से तैयार होके आते हैं। लेकिन इस तरह से प्रॉब्लम रख के अगर समझाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। नया आइडिया है एंड वी शुड अडॉप्ट। एक सवाल वकील साहब ने पूछा कि 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, क्या होगा? कौन से वकील साहब थे? हाँ, देखिए आपके सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाने चाहिए, और ये काम आप कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। आप प्रस्ताव पास करो, अपने एमएलए से कहो, विधानसभा में प्रश्न पास कराओ। जुडिशियल डिपार्टमेंट की चिंता सरकार कभी नहीं करती। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाए, कोई नहीं सोचता इस बात के लिए। जो जजेस हैं उनसे पूछो कितना काम करते हैं जजेस। जो हाईकोर्ट ने नॉर्म्स स्थापित कर रखे हैं कि 100% डिस्पोजल होना चाहिए, हर जज 150-200% काम कर रहा है। एक बार मेरे से चीफ जस्टिस ने पूछा, योर डिस्पोजल इज हाईएस्ट, कैन यू गिव मी मोर डिस्पोजल? देन आई रिप्लाइड, मैंने उनसे कहा कि सरकारी वकील को मौजूद रहना चाहिए। मैं शाम को 1 कप चाय पी कर फिर बैठ जाऊंगा, रात को 10 बजे तक काम करूंगा। मुझे 2 स्टेन ओवर दीजिए। आखिरी हम जो डिक्टेशन देते हैं सब काम कौन करेगा? वकील साहब तो आ जाएंगे, उनके बल्ले का भला हो रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी काम करने तो आना चाहिए। सरकारी वकील साहब अगर 5 बजे चले जाएंगे, फाइल उठा के अपनी कि हम जा रहे हैं साहब, मेरा टाइम पूरा हो गया, तो आगे कोर्ट कैसे चलेगी? दूसरा, एडजॉर्नमेंट कम से कम होने चाहिए। एक वकील के पास शेयर पर की 50% वकालत होती है, एक वकील के पास बाकी सब वकील 50% बटे होते हैं। वो वकील साहब कितना काम करेंगे आप बताओ? उनके सामने अगर 50 केस उनकी डायरी में आज चढ़े हुए हैं तो बहुत करेंगे, पूरे दिन लगे रहेंगे, तब भी वो 15 केस से आगे अटेंड नहीं कर सकते, तो कैसे एडजॉर्न होगा? इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तीसरा, आदमी कोर्ट जाने में घबराता है। किसी को गवाही के लिए बुलाओ आप कि तुमको गवाही देने जाना है, तो वो आते नहीं। 5-5 बार सम्मन जाते हैं, वारंट जाते हैं, अल्टीमेटली कोर्ट से प्रोसेस से जब वारंट पहुंच जाता है तब आदमी कोर्ट में बयान देने आता है। और आते ही क्या कहता है मालूम है? हम लोग तो हंसते थे इस बात को कहने के लिए कि वो स्टाइल होने आया। आते ही कहेगा साहब मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उस समय तक वो इतना प्रेशराइज हो चुका होता है, उसे बार बार समझा दिया जाता है कि तू मूल्यम के की बात कहना और कुछ मत कहना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गवाह का भी उचित प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि वो सत्य कह सके। मुझे यूपी के कानून की बात बहुत अच्छी लगी। यूपी में क्या होता है, एंटिसिपेटरी बिल तो होती नहीं है, सस्पेंडेड प्रोविजन,
दूसरा क्या होता है, एफआईआर जब भी जाती है तो उस एफआईआर को एफए के सपोर्ट में एफिडेविट होता है, जो बयान होते हैं उनके समर्थन में उसका एफिडेविट होता है ताकि इमीडिएटली प्रोसिक्यूट हो जाएगा उस टाइम होने पर। ये सब सुधारवादी प्रक्रियाएं आपको भी अडॉप्ट करनी है, तब समाज में फिल्ट्रेशन हो पाएगा और इन सारे केसेस का निपटारा हो पाएगा। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक नया कंसेप्ट दिया आपने। आप सब इस पर विचार करें, इसको आगे बढ़ाएं। नंबर ऑफ जजेस बढ़ने चाहिए, जहाँ यहाँ तो हमारे यहाँ तो 1 लाख पे धंसे भी नहीं, 1 लाख केसेस के ऊपर कितना कम रेशियो है। विदेशों में तो 20 और 25 तक के हैं वहाँ से ज़्यादा। एक बार जस्टिस लाहौटी साहब ने इस बात को उठाया था, उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाओ, काम कौन करेगा, इतना सारा केस बरकरार है। दूसरा एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ, अभी दिमाग में आया मैं कई दिन से प्रयास कर रहा हूँ इस बात के लिए। देखो, आपके माता पिता ने प्रॉपर्टी बनाई सन 50 में, फिर किसी और के माता पिता ने प्रॉपर्टी बनाई सन 70 में, फिर किसी और के माता पिता ने प्रॉपर्टी बनाई सन 90 में। सन 50 के मकान में 5 रुपये महीने किराएदार बैठा है, उसको आप लीगली स्टैंडर्ड रेंट बढ़ाओगे तो 10% से आगे नहीं बढ़ सकता, तो कितना बढ़ेगा। सन 70 वाले में अगर उसने 500 रुपये महीने पे किराए से दिया तो उसका स्टैंडर्ड रेंट कितना बढ़ेगा। सन 90 में उसने उसी प्रॉपर्टी को 5,000 रुपये महीने पे किराए पे दिया तो वो कितना बढ़ेगा। तीसरी बात, मकान मालिक तो मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाएगा खाली कराने के लिए, वो खाली होगी नहीं कभी। तो होना ये चाहिए मकान मालिक की प्रॉपर्टी मकान मालिक की रहे, वो उसका सही उपयोग कर सके, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसने मकान बना के कोई गुनाह नहीं किया। होना ये चाहिए अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पस के लिए है तो 3 साल बाद आपका मकान खाली करना आवश्यक है, अगर किराएनामे का रिन्यूअल नहीं होता। इससे क्या है, सबके साथ एक सब व्यवहार हो जाएगा। जो मकान खाली होगा 5 रुपये महीने किराए वाला, वो भी 500 को उठेगा। 500 वाला खाली होगा, आज के टाइम में 5,000 को उठेगा। सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी गई है तो 7 साल के बाद खाली करना पड़ेगा, जरूरी है। इस सब से जितनी रेंट एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की, रेंट एक्ट की जितनी भी मुकदमेबाजी है वो सब खत्म हो जाएगी। लड़ाई तो इसी बात की कि हमको मकान खाली नहीं करना, हमको दुकान खाली नहीं करना, मकान वालों को आवश्यकता नहीं है, ये बहाना वो बहाना। दुनिया भर के डिफेंस दे रखे हैं एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में कि मकान वाले मुकदमा आपके ऊपर लगा दे तो आपको क्या क्या डिफेंस करना है। सारी कवायद इसी बात के लिए। आप आगे बढ़ो इस बात के लिए, कानून में सुधार होना चाहिए, और जब ये कर दोगे तब एकता सब संभावित साबित हो जाएगा। बहुत सारे मुकदमे अपने आप कमाए। आज इस सुंदर अवसर के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू for the valuable insights and inputs. I take liberty to just bring up a fact, which is an amended fact. Now anticipatory bail is possible and it is available to all the accused in state of UP since 2018. So just one fact, that is an updated fact for all of lawyers here. I call upon Advocate Prasanna ji to come up on the stage for the formal vote of thanks and an announcement that all have to stay for the high tea. Thank you. वंदे मातरम। युवा दिवस के इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कैसे घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, विधिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, यह दृश्यम विधि के द्वारा हमें ऑनरेबल जस्टिस श्री आनंद पाठक साहब ने बताया, जिन्होंने हमारे विनम्र निवेदन को उत्साहपूर्वक स्वीकार करके और यह बात कही कि मैं अपने ही लोगों के बीच में जा रहा हूं और इस लॉयर्स के बीच में यह दृश्यम विधि का मैं यदि इंदौर में इस पे लेक्चर डिलीवर करूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके और हमारे बीच में एक घटनाओं को देखने का अलग आयाम, अलग तरीका प्रस्तुत किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम अत्यंत आभारी हैं माननीय मेंबर महोदय श्री उमेश गजानकुश साहब के, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर महोदय, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में हमारा निवेदन सहर्ष स्वीकार करके हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं।
हम आभारी हैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, हमारे मार्गदर्शक ऑनरेबल जस्टिस श्री श्रीवास्तव साहब के, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। हम बहुत आभारी हैं हमारे ऊर्जावान क्षेत्रीय संयोजक महोदय श्री विक्रमजीत दुबे साहब के, जिनके विचार के कारण आज हमें यह ज्ञान अर्जन का अवसर प्राप्त हुआ। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सक्रिय महामंत्री महोदय श्री वाल्मीकि जी का, जिन्होंने अपनी सक्रियता से दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग और परिश्रम दिया। हम आभारी हैं हमारी राष्ट्रीय सदस्य श्रीमती स्वाति उगले जी का, जिन्होंने अपना समय दे करके इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हम आभारी हैं समस्त वरिष्ठ अधिवक्तागण जो आज शनिवार के दिन भी हमारे बीच में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हम आभारी हैं समस्त एडवोकेट्स, समस्त देवियों सज्जनों के, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस के पश्चात अभी राष्ट्रगान होगा। मेरा निवेदन है कि आप राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के पश्चात आप सभी स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। राष्ट्रगान के लिए मैं अधिवक्ता श्री पवन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब जब नाम आया अभी तो सब बोले हमारे साथ उस समय थे, हमारे साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया था, मतलब मेरे को भी इस कारण से आने में सब मेरे को आने में उत्साह था। मतलब इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने सब सोचा है तो बहुत ही हाँ इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जो उस शिक्षण को हम कैसे
अरे सर ये इधर का दिख रहा है मैम बाकी लोगों को बाकी लोग हाँ हाँ सब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, सबके फोटो हो जाएंगे। 4:30-5 मिनट साहब खड़े हुए और कौन होगा दीदी तक आ जाए तो आप विचार करते रहे। सिचुएशन बढ़ा दिया और अभी तक देखो किसी ने नहीं बोला था, अब आपने बोला तो वो समय के गोल्डन विजय वल्डी का हाँ विजय भैया थे ना, इसे तो मैंने याद किया। भैया पहुँचते हाँ